Hello, dear viewers. Welcome to another session on partnership accounts. In today's session, we will talk about retirement or death of a partner. So there will be like 3 sessions or 3 videos on this particular topic. The learning objectives that we have for this series are new profit sharing ratio and gaining ratio, distinction between sacrificing ratio and gaining ratio, accounting treatment of goodwill when a partner retires or die, accounting treatment for revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of reserves and accumulated profits, accounting treatment for accumulated losses, adjustment of capitals according to the new profit sharing ratio, disposal of amount due to retiring partner, and calculation of amount payable to representatives of a deceased partner and how it is disposed of. If we talk about the session plan, this entire series will be divided into following sessions. First one will be introduction, in which we will talk about overview and we'll look at some basic terms. Then we will look into some calculations of new profit sharing ratio and gaining ratio. Then we will talk about treatments of revaluation account, accumulated profit or loss, adjustments of capital account. Then disposal of amount due to retiring or deceased partner, and some key points to note and topic at a glance. So this is a high level overview of our session. Moving forward, if we talk about overview, the retirement or death of a partner results in dissolution of partnership. Again, this is very important point, and I have been repeating it, repeated this thing in my so many sessions, that whenever there is change in the existing terms and conditions of a partnership, it is termed as dissolution of partnership. तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म का. से फॉर एग्जांपल ए, बी, सी और डी 4 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे. इसमें से बी ने डिसाइड किया कि मैं अब ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ दे रहा हूं या मुझे इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना है. तो भी ए, सी और डी मिलके उस पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप तो खत्म हुई. जो पार्टनरशिप जिसमें पहले 4 लोग थे, अब उस पार्टनरशिप में सिर्फ 3 लोग बचे. तो वो जो पुरानी पार्टनरशिप थी जिसमें 4 लोग थे वो खत्म हो गई, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो अभी भी चल रही है. इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाए. जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो उस पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. At the time of retirement or death of a partner, the following actions or treatments are required. तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो हमें क्या क्या करना पड़ता है. सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन वी नीड टू डू द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो. देन we have to treat the goodwill. Then revaluation of assets and liabilities is done, followed by treatment of undistributed profits or losses, adjustment of capital in new form, and finally paying off liability against retiring partner or representatives of deceased partner. तो ये जो है 7 चीजें हमें करनी पड़ती हैं जब भी किसी पार्टनर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है. Before we move on and start looking at in detail that how these various activities are carried out in case of retirement or death of a partner,
Let's understand some basic terms so it would be easy when we will use those terms in our further discussions. First one is outgoing partner. Second is remaining partner. Third is deceased partner. Fourth is sacrificing partner. New profit sharing ratio, gaining ratio. So let's understand these terms one by one. Outgoing partner. Outgoing partner, the partner moving out of partnership either by retiring or the partner who is not in the partnership anymore due to his or her death. So जब हम outgoing partner बोलते हैं तो हम उस पार्टनर के बारे में बात करते हैं, हम उस पार्टनर को रेफर कर रहे होते हैं जो कि पार्टनरशिप से बाहर जा रहा है या जो पार्टनरशिप से ऑलरेडी बाहर जा चुका है। यानी कि सॉरी, जो पार्टनर है या तो वो रिटायर होने की वजह से पार्टनरशिप से बाहर जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वो ऑब्वियसली अब पार्टनरशिप में नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर, तो जब भी remaining partners का मतलब है the partners who continue to remain in partnership or the partners who remain or are left in the partnership firm। तो जब 4 लोगों की पार्टनरशिप थी उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई या एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बाकी के जो 3 पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में बच जाते हैं उनको हम रिमेनिंग पार्टनर बोलते हैं। उसके बाद है डिजीज पार्टनर, तो ये टर्म हमने ऊपर यूज किया था डिजीज पार्टनर। तो डिजीज पार्टनर का मतलब हम उस पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, द पार्टनर हु लूजेस पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑन अकाउंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो नॉर्मली क्या होता है कि 4 पार्टनर्स थे उसमें से एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी किसी भी वजह से, चाहे तो वो रिटायर हुआ या उसकी डेथ हो गई हो। तो आइडियली ये होना चाहिए कि बाकी के जो 4 पार्टनर बाकी के जो 3 पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक पार्टनर चले जाता है और जब हम पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है लेट्स मेक अ चेंज इन आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो किसी पार्टनर का जो हिस्सा उसको प्रॉफिट में पहले मिल रहा होता है रिकंस्ट्रक्शन से पहले वो रिकंस्ट्रक्शन के बाद कम हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर है जिसका प्रॉफिट में हिस्सा कम हो गया आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस पोस्ट मूविंग आउट ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म आइदर ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से चला गया तो उसके बाद में अब उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो था वो ऑब्वियसली बदल जाएगा, जैसे वो पहले था वैसा नहीं रहेगा। तो किसी पार्टनर के जाने के बाद उस पार्टनरशिप फर्म में जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है या किसी पार्टनर के बाहर जाने के बाद जिस रेशियो में बाकी के पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे उसको हम बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद है गेनिंग रेशियो, द रेशियो इन विच द प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्रीजेस फॉर द रिमेनिंग पार्टनर। जिस रेशियो में जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में बच जाते हैं उनको प्रॉफिट में जो बढ़ा हुआ शेयर मिलता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग गेनिंग रेशियो। तो जब प्रॉफिट था 4 लोगों में बट रहा था तो उनको एक सर्टेन परसेंटेज मिल रहा था, अब उन 4 लोगों की जगह अब वही प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा तो ऑब्वियसली तीनों का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो जिस रेशियो में बाकी के 3 बचे पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर बढ़ेगा उसी को हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। So these were some of the basic terms. Now let's talk about what is sacrificing ratio and what is gaining ratio, or what is the difference between sacrificing ratio and gaining ratio. So if we talk about basis of difference, we can differentiate between sacrificing ratio and gaining ratio on
5 parameters or on 5 different bases. First of all, meaning. It is the ratio in which the old partners surrender a part of their share in favor of new partner. Sacrificing ratio का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, सपोज ए, बी और सी पार्टनरशिप में एक फर्म चला रहे थे और उन्होंने कहा कि चलो हम डी को भी अब इसी पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर लेते हैं। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बट रहा था वो 4 लोगों में बटेगा। तो जो पहले 3 लोग थे यानी कि ए, बी और सी, उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, उनका शेयर जो है प्रॉफिट में वो कम हो जाएगा। तो जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट में शेयर कम हुआ उसी रेशियो को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट छोड़ा उसी को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। But if we talk about gaining ratio, it is the ratio in which the remaining partners acquire the outgoing, retired or deceased partners share. जिस रेशियो में जो पार्टनर बाहर चले गया पार्टनरशिप फर्म से, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स में बचा उसे हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। यूज, इट इज यूज टू शेयर द गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा कैश में, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? तो दैट इज डिवाइडेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Whereas जब हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं, गेनिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉम्पनसेशन पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने भी मेहनत की, उसकी भी मेहनत का नतीजा था कि आज पार्टनरशिप फर्म की मार्केट में गुडविल है। तो जब वो उस पार्टनरशिप फर्म से निकल के जा रहा है तो उसको उसकी मेहनत का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो उसी कॉम्पनसेशन को जो बाकी के बचे पार्टनर्स है वो किस रेशियो में देंगे, उस रेशियो को, उस प्रोपोर्शन को डिसाइड करने के लिए हम गेनिंग रेशियो यूज करते हैं। या वो जो कॉम्पनसेशन है वो बाकी के पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में आउटगोइंग पार्टनर को देते हैं। कैलकुलेशन कैसे होती है इसकी? We calculated sacrificing ratio first by deducting old partners new share from their old share and make ratio of the sacrifice. The formula of calculating this ratio is sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. तो हम जो पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, उनका जो ओल्ड शेयर होता है उसमें से नया शेयर माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंस निकल के आता है वो उनका सैक्रिफाइस हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, मतलब पहले उन्हें प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिल रहा था, माइनस न्यू रेशियो। अब आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो नया रेशियो हुआ उस रेशियो को हम माइनस कर देते हैं। When we are going to calculate the gaining ratio, we deduct the old share of the continuing partner from their new share to calculate the gain and make ratio of the gains. Formula for calculating the ratio is gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. This is our assumption that अगर जहां पे जो प्रॉफिट था किसी पार्टनरशिप फर्म का वो अगर 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी जगह अगर वो 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाए तो हर पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा। तो जब प्रॉफिट में शेयर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो रेशियो है उनका वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं तो हमें गेनिंग रेशियो मिल जाता है। Effect on capital. Old partners' capital accounts are credited in the sacrificing ratio. Sacrificing ratio का इफेक्ट क्या पड़ता है कैपिटल पे? जो sacrificing ratio होता है उस रेशियो में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, whereas continuing partners capital accounts are debited in the gaining ratio. लेकिन जब हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं तो क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म में रह जाएंगे बाद में,
पार्टनर के रिटायरमेंट या पार्टनर की डेथ के बाद उन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम गेनिंग रेशियो में डेबिट करते हैं. Occasion of calculation, sacrificing ratio is calculated in case of admission of a partner, whereas gaining ratio is calculated in case of retirement and or death of a partner. So when these ratios are calculated, sacrificing ratio is calculated when a new partner is admitted. तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है उस टाइम पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. और गेनिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब भी रिटायरमेंट या डेथ की वजह से कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से बाहर जाता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. नाउ we will divide this session into two parts. In the first half, we will discuss about the retirement of partner. And in the second part, we will talk about how to deal the partnership firm accounts in case of death of a partner. So adjustments at the time of retirement of a partner. तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उस टाइम पे हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स करने होते हैं? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड और अनडिवाइडेड प्रॉफिट, मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, एंड फाइनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स. तो ब्रीफली अगर हम बात करें तो हमें जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में हमें एक तो न्यू और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स. जो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल होती है उसको हमें ट्रीट करना होता है, उसका जो भी एडजस्टमेंट करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है जिन अकाउंट्स को, वो हम करेंगे. उसके बाद हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं. जितने भी हमारे अनडिवाइडेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं हम उनको उन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं या उन अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं. उसके बाद में जो रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देना होता है उसको हम किन किन तरीकों से डील कर सकते हैं. कई तरीके हैं जिनसे कि रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट हम सेटल कर सकते हैं. और उसके बाद में जो नई पार्टनरशिप बनती है उस नई पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे होंगे, क्या वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगे, क्या उसमें किसी पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लाना है या किसी पार्टनर को कैपिटल विड्रॉ करना है, वो हम डील करते हैं. तो दीज आर द 6 थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन in case of retirement of a partner. Now, first let's look at calculation of new and gaining ratio. तो जब हम न्यू और गेनिंग रेशियो की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की. When a partner retires from the firm and remaining partner decide to continue the business as firm, they need to decide among themselves what will be the new profit sharing ratio in future. ऑब्वियस सी बात है, पहले जो प्रॉफिट 4 लोगों में बट रहा था से फॉर एग्जांपल अब वो 3 लोगों में बटेगा. तो जो बाकी के बचे 3 लोगों में जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा? दिस इज समथिंग द रिमेनिंग पार्टनर्स नीड टू डिसाइड इफ दे डिसाइड्स इन फर्स्ट प्लेस दैट दे विल कंटिन्यू द बिजनेस एज अ पार्टनरशिप फर्म. तो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं. पहला केस क्या है? Continuing partners may decide that they will continue with the old ratio. या तो अब ये सिनेरियो होगा कि जो पार्टनर्स बचे हैं वो बोलेंगे कि ठीक है भाई, जो भी प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था आगे भी वही चलता रहेगा. या रिमेनिंग पार्टनर्स में डिसाइड दैट दे विल शेयर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन अ न्यू एग्रीड रेशियो. अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में रह जाएंगे, वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द ओल्ड रेशियो, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन बचेगा या उसका जो प्रॉफिट का शेयर था वो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर
नए रेशियो में शेयर करेंगे आपस में से। फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर्स थे और पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट था वो था 100 रुपीज। ठीक है, अब सारे पार्टनर्स जो थे उसको 1:1:1 के रेशियो में शेयर कर रहे थे, यानी कि सारे पार्टनर्स को 25-25 रुपए मिल रहे थे। तो अगर तो फर्स्ट केस में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पहले था हम उसी रेशियो में करेंगे, तो यानी कि जो आउटगोइंग पार्टनर के 25 रुपए हैं वो तीनों पार्टनर्स में 1:1:1 के रेशियो में बढ़ जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। लेकिन सेकेंड कंडीशन में उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, जो ये 25 रुपीज है इसको हम 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि जो आउटगोइंग पार्टनर का जो प्रॉफिट का जो शेयर बचा है उसको हम लोग 2:2:1 के रेशियो में आपस में बांट लेंगे। तो दिस इज द सेकेंड सिनेरियो। अब अगर पहला केस की हम बात करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिसाइड दैट दे विल कंटिन्यू विद द ओल्ड रेशियो, तो उस केस में क्या होगा? इन सच अ सिनेरियो द रिमेनिंग portion of the partner share will be distributed among remaining partners in their old relative ratio. This method is followed if the relative ratio between continuing partners is not changed. अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, हम जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो पुराने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि आगे क्या हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज नहीं होगा, तभी हम यूज करते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए, बी और सी, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. C retires from the firm. New profit or loss sharing ratio will be calculated as under. अब यहाँ पे क्या है कि continuing partners may decide that they will continue with the old ratio. तो अब A, B और C तीन पार्टनर्स थे, 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, और C रिटायर हो गया पार्टनरशिप फर्म से। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी अब इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि जो सी का प्रॉफिट का जो शेयर था वो ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम ये मानेंगे कि जो सी का प्रॉफिट का जो शेयर था दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? ए और बी का जो कंबाइंड शेयर है वो कितना होगा? Let's assume the total profit of the partnership firm is 1, और उसमें से C का शेयर कितना है? 1/6। तो 1 minus 1/6 is equal to 5/6. So the combined share of A and B in the share of firm's profit is 5/6. तो A's share out of 1 is 5/6, which is equals to 3/6, and A's share out of 1 is 3/6 multiplied by 6/5. अब ये 6/5 कहां से आया? तो ये जो 6/5 जो है ये हमारा कहां से आया? तो ये जो 6/5 है ये इस 5/6 का रेसिप्रोकल है, बिकॉज ये जो 5/6 है दिस इज द कंबाइंड शेयर ऑफ A and B out of the profit, when we are assuming that the profit of partnership firm is 1 and we have deducted the share of 1/6, जो C का जो प्रॉफिट में शेयर था 1। तो अगर हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो 3 + 2 + 1 = 6। तो उन 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट वाज फॉर C। तो इस वजह से हमने क्या किया? 1 में से 1/6 को माइनस किया, तो हमारा बैलेंस बचा 5/6। तो जब हम A का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं आउट ऑफ 1, तो A का शेयर कितना है? 3/6, और वो जो है वो हमें कितने में से निकालना है? अब जो रिमेनिंग हमारा जो प्रॉफिट बचा वो कितना था? 5/6। तो हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। तो A का शेयर आ गया हमारा 3/5,
इसी तरीके से अगर हम बी के शेयर की बात करते हैं तो बी का जो शेयर है आउट ऑफ 1 इज 5/6 इज 2/6, यानी कि ये जो 5/6 है, जो ए और बी का रिमेनिंग शेयर था वो कितना है 2/6। तो बी का जो शेयर है आउट ऑफ 1, आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट इट विल बिकम 2/5। तो ए और बी के बीच में जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3/5:2/5। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इट विल बिकम 3:2। दैट मीन्स पहले जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था तीनों पार्टनर्स के बीच में वो था 3:2:1, और अब जो हमारे दो पार्टनर्स बचे हैं ए और बी, उनके बीच में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह जाएगा 3:2 का। Remaining partners may decide that they will share the retiring partner's share in a new agreed ratio. अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो हम एक नए एग्रीड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। In such a situation, the new agreed ratio will be applied to the retiring partner's share and added to their old relative ratio to arrive at the new ratio। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर था प्रॉफिट में, उसको हम जो एग्रीड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो पुराना रेशियो था उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। Let's try and understand this with the help of an example. अब यहाँ पे क्या है, A, B और C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. B retires from the firm. A takes 1/12 and C takes 3/12 of B from B. Sorry, I'm not well today. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि A, B और C तीन पार्टनर्स थे, उसमें से B रिटायर हो गया और A और C ने ये डिसाइड किया कि जो B का शेयर था प्रॉफिट का, उसमें से 1/12 तो ले जाएगा A और 3/12 ले जाएगा B। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? A का जो हमारा शेयर निकालेंगे हम, नया जो A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा या A का जो नया शेयर होगा वो कैसे होगा? ओल्ड शेयर दैट इज 3/6 प्लस गेन आउट ऑफ B's शेयर। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 3/6, यानी कि यहां पे अगर हम देखते हैं 3 + 2 + 1, तो ए का जो शेयर हुआ वो कितना हुआ? 3/6 प्लस 1/2, 1/12, ये किसका है? A टेक्स 1/12 ऑफ फ्रॉम B, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये 6 + 1/12, तो 7/12 A का शेयर हो गया। C का शेयर क्या होगा? 1/6, बिकॉज यहाँ पे 3:2:1 के रेशियो में हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और B को सिर्फ 1 पोर्शन मिल रहा है, तो इसलिए 1/6 प्लस 3/12 जो उसको B से मिला, तो ये कितना हो गया? 5/12। तो न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 7/12:5/12। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इट विल बिकम 7:5। सो दिस इज हाउ the new profit sharing ratio is calculated. If we talk about gaining ratio, so we have already discussed the definition of gaining ratio. Gaining ratio is the ratio in which remaining partners gain out of the share of the retiring पार्टनर। तो जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है उसमें से जिस रेशियो में या जिस प्रोपोर्शन में रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ता है उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। लेकिन व्हाई वी हैव द गेनिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? गेनिंग रेशियो होता क्यों है अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है? इसका आंसर है the continuing partners take benefit when a
partner retires from the firm. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स हैं, फर्म का प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए, और वो जो 100 रुपए है चारों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज ऑल ऑफ देम आर गेटिंग 25 रुपीज ईच। तो अब उनमें से जब एक पार्टनर चला गया, फर्म का प्रॉफिट अभी भी 100 रुपए है, तो वो जो 100 रुपए है वो अब 4 जगह बटने की बजाय सिर्फ 3 जगह बटेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको 33 अगर मान लेते हैं, अगर हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो 33.3333 आएगा। तो लेट्स अज्यूम कि 33 रुपीज तीनों पार्टनर्स को मिल रहा है। तो अर्लियर दे वर गेटिंग 25, नाउ दे विल गेट 33 रुपीज। दैट मीन्स देयर शेयर इन प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय ₹8। So that is the reason the remaining partners gets benefited when a partner retires from the partnership firm. That's why we have the gaining ratio. Is calculation of gaining ratio necessary? क्या gaining ratio calculate करना जरूरी है? Yes, calculating gaining ratio is necessary as this is used for distribution of goodwill. तो जो पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस प्रोपोर्शन में कौन सा अकाउंट, कौन से पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, कौन से पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, इस ट्रीटमेंट को करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू मस्ट कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. Okay, now let's understand the gaining ratio with the help of an example. A, B, and C have been sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. After B's retirement, A and C has agreed to share in the ratio of 2:1. तो अब इस यहाँ पे क्या हुआ, A, B और C 3 पार्टनर थे जो 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे. बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी ने डिसाइड किया कि अब आगे का जो प्रॉफिट है वो 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे. तो अब इसका गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ए का जो गेन है वो हम कैसे निकालेंगे? तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें गेन निकालना पड़ेगा. और गेन कैसे निकालेंगे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. तो न्यू शेयर क्या हुआ? 2/3, यानी कि यहाँ पे ये लोग 2:1 में कर रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ? 3. उसमें से ए को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं? 2 पार्ट्स. सो 2/3 माइनस 5/10 जो ओल्ड शेयर था. यहाँ पे 5 + 3 8 + 2 10. तो जो ए का शेयर है वो है 5/10. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 5/30. इसी तरीके से हम सी का गेन निकाल लेंगे. सी का गेन आया 4/30. तो जब हम इसका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 5/30 = 4/30 और 5:4/30, या बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ले जाएंगे तो 5:4. यानी कि इस एग्जाम्पल में ए और सी का जो गेनिंग रेशियो है दैट इज 5:4. अब गुडविल की बात करते हैं हम कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. When one of the partner of the firm retire, it becomes important that he should be rewarded for his efforts in creating the goodwill of the firm in the market. For this reason, goodwill needs to be valued at the time of retirement, and retiring partner should be given his share of goodwill. तो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म मार्केट में काम करती है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो मार्केट में उस पार्टनरशिप फर्म की एक रेपुटेशन बनती है, एक गुडविल बनती है. और वो जो गुडविल बनी है उस पार्टनरशिप फर्म की, उस गुडविल को बनाने में सारे पार्टनर्स की मेहनत लगी होती है. तो जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा होता है तो ये बहुत जरूरी है कि हम गुडविल का कैलकुलेशन करें और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसकी मेहनत का कॉम्पनसेशन मिले. तो इसीलिए हम जब भी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और गुडविल का वैल्यूएशन करके जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको गुडविल में उसका जो शेयर है वो हम दे देते हैं. गुडविल के ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है? स्टेप 1, कैलकुलेट और वैल्यूएशन ऑफ goodwill of the entire firm as per partners
एग्रीमेंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की हम जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं जो कि हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है उस वैल्यू के मुताबिक। उसके बाद असर्टेनमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो पार्टनरशिप फर्म की जो टोटल गुडविल हमने कैलकुलेट की स्टेप 1 में, उसका रिटायरिंग पार्टनर उसमें उस गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर है वो हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप 2 में। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्योंकि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि गेनिंग रेशियो जो है ये जरूरी होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो तीसरे स्टेप में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद में जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज जरूरी होती हैं इन रिगार्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम उन जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, there are some scenarios and we will look at those journal entries one by one. पहला सिनेरियो क्या है, गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड, और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, इफ गुडविल अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट में हमारा गुडविल अकाउंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट और इवैल्यूएट और असर्टेन द टोटल गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जो भी हमारा मेथड है, एग्रीड मेथड है, उस मेथड से हम पार्टनरशिप फर्म की पूरी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल आउट ऑफ द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, और उसके बाद में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, कंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और यहाँ पे जो गुडविल का हमारा अमाउंट आएगा वो उस अमाउंट में से हमने जो रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर कैलकुलेट किया है वो हम रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल या करेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट जो है वो होगा गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। सो से फॉर एग्जांपल रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया 100 रुपीज से, तो वो जो 100 रुपीज है बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन इन देयर गेनिंग रेशियो। If we talk about second scenario, if continuing partners loses share in addition to the retiring partner, ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी कि नॉर्मली ये होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन सबका पार्टनरशिप अकाउंट में शेयर बढ़ जाता है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बट कई बार ये भी होता है कि एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कुछ एक पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनका कि प्रॉफिट का जो शेयर है वो कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले के दो स्टेप्स सेम रहेंगे। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, कैलकुलेटिंग गेनिंग शेयर दैट इज शेयर लॉस्ट बाय द रिटायरिंग एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर। Calculate retiring partner's share of goodwill. Also calculate losing partner's share of goodwill for the share lost by him. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे कि जिस पार्टनर ने लूज किया है उसका कितना शेयर है गुडविल में, एंड वो हम सिर्फ उस पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे जितना पार्ट उसने लूज किया है, और रिटायरिंग पार्टनर के भी गुडविल में शेयर का हम कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो से फॉर एग्जांपल ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर थे, उसमें से फॉर एग्जांपल बी रिटायर हो गया, और सी का जो नए पार्टनरशिप फॉर्म जो थी उसमें सी का भी जो शेयर था वो कम हो गया।
तो अब ए और डी जो है वो क्या हो गए, हमारे गेनिंग पार्टनर हो गए। तो हम इस केस में एंट्री करेंगे एज से, फॉर एग्जांपल एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बी जो था उसको हमने क्रेडिट इसलिए किया बिकॉज ही इज रिटायरिंग पार्टनर, और सी को हमने इसलिए क्रेडिट किया बिकॉज सी इज आवर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ए और डी को हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि ए और डी जो है हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं। लुकिंग एट सिनेरियो नंबर 3, गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड, और ये कब है, इफ द गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, find out goodwill of the entire firm and calculate retiring partners share. Retiring partners share of goodwill may be given, and then finally we will pass the following journal entry. All partners capital or current account debit to goodwill account. This is the journal entry for step number 1, that is for writing of existing goodwill among all the partners in their old profit sharing ratio. Then continuing partners capital or current accounts debit to retiring partners capital or current account, being retiring partners share of goodwill debited to continuing partners capital account in the gaining ratio. तो इससे पहले के जो दो सिनेरियोज हमने डिस्कस किए थे, दैट इज सिनेरियो नंबर 1 एंड 2, उसमें क्या था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल अकाउंट था ही नहीं, लेकिन सिनेरियो नंबर 3 एंड सिनेरियो नंबर 4 आर दो सिनेरियोज वेयर द गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहला सिनेरियो जो है उसमें क्या है कि अगर आपका गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको आप क्लोज कर दोगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसकी जर्नल एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और उसके बाद में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका आप कैलकुलेट करोगे उसका शेयर, और उसका शेयर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के बाद में आप कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट जो है आप क्रेडिट करोगे, that too in the gaining ratio. The last scenario for treatment of goodwill is if continuing partners lose their share in addition to the retiring partner. ये हमारा दूसरा वाला जो कंडीशन था जहां पे कि रिटायरिंग पार्टनर के अलावा भी किसी पार्टनर का शेयर कम हो रहा है, उसमें पहले अब यहाँ पे ये चीज है कि जो गुडविल अकाउंट है वो बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम इस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे। उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म की जो एंटायर पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका शेयर, जिसने अपना नए पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई लॉस किया, उस शेयर में कुछ लॉस किया, तो उसके गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो दोनों ही केसेस में मोर और लेस जर्नल एंट्री सेम है। जब अगर बुक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बुक में अगर गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहली एंट्री हम करेंगे टू राइट ऑफ दैट goodwill account existing in the books of accounts by passing a journal entry all partners capital और current account debit to goodwill account, and बाकी का जो ट्रीटमेंट है वो दोनों ही केसेस में सिमिलर रहेगा। Very well, friends. That's all from our side in today's session. Hope you liked the session. If you have liked the session, don't forget to press the like button.
And do subscribe to our channel. And when you are subscribing, please don't forget to press the bell icon so that you get notified as soon as we post a new video. And yes, of course, don't forget to share it with your friends. But still, if you have any queries, feel free to write us on connect2letsmaster@gmail.com, and we will see you soon in our next session. Till then, thanks and happy learning.